Hello students, today we will complete our lesson 9 of Honeydew book, that is the Great Stone Face, page number 127. Today we will compile it. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. One there was a rumor that the man resembling the face of the great stone face has appeared in the native valley. After listening this, Ernest had been deeply stirred, deeply moved. He was deeply touched that the great man, the man of prophecy, had at last arrived in the native valley. Ages of delay मतलब काफी सालों के बाद. While the boy was still gazing up the valley, at that time also the boy Ernest was also looking continuously at the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze. एक दिन उसको ऐसा लगा कि जब वो कंटिन्यू उस ग्रेट स्टोन फेस पर देख रहा है तो उसको ऐसा लगा कि शायद ग्रेट स्टोन फेस भी उसकी तरफ देख रहा है. Now the noise of wheels was heard and crowd of people cried, here comes the great Mr. Gather Gold. मीन्स ऐसे ही उसको वैली के अंदर व्हील्स मतलब जैसे कि पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, उनकी आवाजें आई और बहुत सारे लोग मिलकर चिल्लाए कि अब जो है ग्रेट पर्सन मिस्टर गैदर गोल्ड नेम्ड मिस हैड अराइव्ड इन द वैली. A carriage drawn by the four horses dashed around turn of the road. Dashed क्या होता है? Go somewhere suddenly and quickly. मीन्स जब एक घोड़े के द्वारा लाई गई कैरेज आई, देन some people go there suddenly and quickly turn to of the road. Within, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. जब देखा विद इन इट, उसके अंदर क्या जो फेस अपीयर हुआ वो किसका फेस था? ओल्ड मैन का, जिसकी स्किन कैसी थी? पेल येलोइश कलर की स्किन हो रखी थी. द वेरी इमेज ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, द शाउटेड द पीपल. उसको देखते ही लोग चिल्लाए कि ये तो बिल्कुल ही ग्रेट स्टोन फेस की तरह से है. और जो लोग हैं वो तो सबसे पहले अफवाहों में विश्वास करते हैं, वो अपनी दिमाग से काम नहीं लेते. जहाँ जा रहे हैं एक लोग चार लोग उसके पीछे हो लेते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें कितनी सच्चाई है. तो सब चिल्लाने लगे कि दैट पर्सन नेम्ड मिस्टर गैदर गोल्ड हैड resemblance to the great stone face. Sure enough, the old prophecy is true. And here we have the great man at last. Now the people were crying that old prophecy is true, कि जो पुरानी लोगों की विश्वास था, विचारधारा थी, वो ट्रू हो चुकी है. And we have the great man at last. And what greatly puzzled Ernest. But one Ernest was not sure that this person was having the resemblance of the great stone face. He was confused when he saw the Mr. Gathergold. They seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly. But when Ernest saw the old man face, he didn't see any resemblance of that personality named Mr. Gathergold with the great stone face. He was confused. He was totally confused because he was looking continuously for hours from the most many years. So he turned away sadly when he saw the face of Mr. Gathergold. कि जो ग्रेट स्टोन फेस के जो देखता था जब वो, तो उसको काइंडनेस दिखती थी. बट जब उसने गैदर गोल्ड के फेस को देखा तो रिंकल्स थे. रिंकल्स क्या होती है? झुर्रियाँ. प्लस श्रूडनेस जो डिसऑनेस्टी होती है.
कि उसके फेस को नहीं दिखता था, गैदरगोल्ड के फेस को देखकर अर्नेस्ट को नहीं लगा कि ये वही काइंड पर्सनैलिटी है जो उसको ग्रेट स्टोन फेस में दिखती है। उसमें कैसी दिखी? श्रूडनेस। श्रूडनेस होता है डिसऑनेस्टी, धूर्त जिसको आप कहते हैं। और फेस उसका कैसा लग रहा था उसको? अनप्लेजेंट। और जबकि उसका फेस कैसा लगता था उसको? प्लेजेंट। एंड गेज्ड अप द वैली, और फिर उसने वैली को देखा। वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से। अब वो गैदर गोल्ड को देखने के बाद ना किसको देख रहा है? ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है। और फिर उसको आवाज सुनाई देती है, ही विल कम, कि वो पर्सनैलिटी आएगी जिसका फेस किससे रिजेम्बलेंस करेगा? ग्रेट स्टोन फेस से। फियर नॉट, ये वर्डिंग्स किसके द्वारा उसको सुनाई दी? ग्रेट स्टोन फेस के द्वारा, जो नेचर का वर्क है कि fear not Ernest, the man will come. The man who would have the resemblance of that great stone face would come in the valley. Don't fear. Year went on, the years passed on. Ernest grew to be a young man. Now the little Ernest was converted into a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze up the great stone face. He attracted little notice, कि अब जो है लिटिल नोटिस मीन्स ऑल द पर्सन्स इन द वैली। इनहेबिटेंट्स मीन्स जो पर्सन्स वैली के अंदर रह रहे थे, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्नेस्ट, वो अर्नेस्ट की तरफ अट्रैक्टेड थे। जो भी अच्छा पर्सन होता है, जिसके अंदर अच्छे मैनर्स होते हैं, उसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। ऐसे ही जो अर्नेस्ट था, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी काइंड पर्सन। ही हेल्प हिज मदर इन हिज डेली रूटीन वर्क, एंड इनहेबिटेंट्स, वहां के रहने वाले लोग उसको देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। और फिर भी अपने जीवन में कुछ रिमार्केबल नहीं कर रहा था। क्या करता था वो? वन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर। लेबर ऑफ द डे मतलब जब उसका डेली रूटीन का काम खत्म हो जाता था, ही स्टिल लव्ड टू गेज अप ऑन द ग्रेट स्टोन फेस। वो घंटों बैठकर अपने घर की दहलीज से किसको निहारता था? ग्रेट स्टोन फेस। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली। The persons in the valley were attracted, but when Ernest saw the great stone face, the persons in the valley thought that it was a folly, it was a foolishness. ये मूर्खता है। लोग क्या कहते थे अर्नेस्ट को? कि ये तो मूर्खता है, तुम ग्रेट स्टोन फेस को इतने इतने घंटों देखते रहते हो, इसमें तो कुछ विजडम नहीं है। बट पार्डनेबल का क्या मतलब होता है? कि माफ कर देना। जैसे कि वो सोचते थे कि ये अच्छी बात नहीं है कि ये इसको देखता रहता है, बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस। फिर भी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट थे, उसकी इस बात को लाइक नहीं करते थे। वैली के जो पर्सन्स थे वो अर्नेस्ट की इस बात को पसंद नहीं करते थे कि वो घंटों बैठकर ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। बट फिर भी वो उसको अच्छा पसंद करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज इंडस्ट्रियस, ही वॉज हार्ड वर्किंग पर्सन। जो अर्नेस्ट था वो हार्ड वर्किंग पर्सन था, काइंड भी था, नेबरली मतलब मिलजुल कर रहने वाला था, सबकी मदद करता था। दे डिड नॉट नो दैट ग्रेट स्टोन फेस हैड कम अ टीचर टू हिम। वो ये नहीं जानते थे कि जो अर्नेस्ट है वो ग्रेट स्टोन फेस को क्या मानता है? अपना टीचर। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। और वो उसको टीचर मानता है, और दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और जो सेंटीमेंट्स ग्रेट स्टोन फेस के द्वारा उसको एक्सप्रेस किए जा रहे थे, उससे इस यंग मैन का हार्ट जो है एनलार्ज होता जा रहा है। मतलब और ज़्यादा काइंडनेस आती जा रही है, और इसके अंदर बहुत गुड क्वालिटीज आती जा रही है। बहुत कुछ ये ग्रेट स्टोन फेस से सीख रहा है। कौन सीख रहा है? अर्नेस्ट। एंड फिल्ड इट विद डीपर सिंपथीज देन अदर हार्ट्स। और उसके अंदर लोगों के प्रति और सिंपथी आती जा रही है। ग्रेट स्टोन फेस को देखने से, ग्रेट स्टोन फेस को अपना टीचर मानने से अर्नेस्ट के अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज और ज़्यादा आती जा रही हैं।
They didn't know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. उन्हें ये नहीं पता कि जो विजडम अर्नेस्ट ग्रेटस्टोन फेस से प्राप्त कर रहा है वो बुक से भी ज़्यादा है। कोई इंसान बुक्स से ज़्यादा विजडम प्राप्त करता है, इंटेलिजेंसी प्राप्त करता है, यहाँ पर अर्नेस्ट उन बुक्स के द्वारा जो विजडम मिलती है, इंटेलिजेंसी मिलती है, उससे भी ज़्यादा विजडम और इंटेलिजेंसी वो ग्रेटस्टोन फेस के साथ टाइम पास करके ले रहा है। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट थॉट्स विच केम टू हिम, ना ही ये बात अर्नेस्ट जानता है कि जो थॉट्स उसके अंदर आ रही हैं सो नेचुरली, वो इतनी नेचुरल हैं, इतनी प्योर हैं और इतनी अच्छी हैं, इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड वर ऑफ अ हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम। और ये विजडम, ये इंटेलिजेंसी, हायर टोन और उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें ऑल मैन, जो सारे लोग थे वो उससे एडवाइस लेने के लिए आते थे, सजेशंस लेने के लिए आते थे। अ सिंपल सोल, अर्नेस्ट वॉज अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी। इतना सिंपल है कि जैसे उसकी मदर ने उसको स्टोरी बताई वो उस पर तुरंत ही विश्वास कर लेता है और आज तक वो उस उम्मीद पर है कि वही पर्सनैलिटी जिसका फेस उसको रिजेंबलेंस करता है वो आएगा। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। अब वो ये सोच रहा है कि जो इतना मार्वलस फेस है, इतना वंडरफुल है, सुपर्ब है, वो इतना लेट क्यों हो रहा है आने में, सो लॉन्ग इन कमिंग, वैसा ह्यूमन बीइंग इसमें आने में, इस वैली में आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। बाय दिस टाइम, और इसी दौरान जो पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड है वो डेड एंड बरीड, मर जाता है और उसको दबा दिया जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसकी वेल्थ थी, बॉडी और उसकी स्पिरिट, जीवित आत्मा, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। अब वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। सिंस द मीटिंग मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड एंड हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस। अब जो है ये सब लोग सहमत हो जाते हैं कि ग्रेट स्टोन फेस से गैदर गोल्ड की कोई रिजेंबलेंस नहीं है। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। रूइंड, रूइंड क्या होता है, डेस्ट्रॉयड। मर्चेंट कौन है, गैदर गोल्ड। एंड द मेजेस्टिक फेस, मेजेस्टिक फेस किसका है, शानदार, बड़ा, बिग, ग्रेट स्टोन फेस का। अब उनको कोई लाइकनेस नजर नहीं आती, किसमें, गैदर गोल्ड में जो मर चुका है और ग्रेट स्टोन फेस में। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। अब एक दूसरा पर्सन है जो पहले वैली में रहता था और अब वो क्या बन चुका है, काफी साल पहले एक सोल्जर। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग he was now a famous commander, means after doing many hard fightings, now that person of valley was converted into a famous commander. He was known on the battlefield by the name of blood and thunder। अब वो, उसका नाम अपनी बैटलफील्ड पर किस नाम से जाना जाता है, ब्लड एंड थंडर। ब्लड एंड थंडर का मीनिंग होता है अनरेस्ट्रेंड एंड वायलेंट एक्शंस, कि वो बिल्कुल रुकता नहीं है, फाइटिंग करने में अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो लड़ लड़ कर थक चुका है। he had lately expressed a desire to return to his valley। Now he had also wanted to come back to his valley after having many great fightings। The inhabitants, जो inhabitants means the persons living in the valley, his old neighbors, उसके पुराने पड़ोसी, and their grown up children prepared to welcome that famous commander। renowned होता है famous commander। अब वैली के रहने वाले सारे पर्सन्स जो हैं वो इस कमांडर की वेलकम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट, अब फिर से लोगों में अफवाह फैल गई कि अब ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करने वाली पर्सनैलिटी आ रही है। इट वॉज बीइंग said that last the likeness of the great stone face had actually appeared, कि अब वो आ चुका है, ग्रेट
Therefore was the excitement throughout the valley. There was a total excitement throughout the valley. The person having the resemblance of the great stone face had arrived now, and many people who had never once thought of glancing the great stone face now spent much time in gazing at it. जो लोग कभी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते भी नहीं थे, अब उसकी रिजेम्बलेंस जानने के लिए, वैसे ह्यूमन बीइंग की उसको जानने के लिए, वो अब घंटों लोग भी, वैली के दूसरे लोग भी उसको निहारने लगते हैं, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ ब्लड एंड थंडर लुक्ड लाइक। अब वो ये जानना चाहते हैं कि जो ब्लड एंड थंडर जो पर्सन आ रहा है, वैली का जो कमांडर बन चुका है, अब वो कैसा दिखता होगा। उसको देखने के लिए वो पहले किसको देखते हैं? ग्रेट स्टोन फेस। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट and all the other people of the valley left their work. जब when the commander came, when the general arrived in the valley, Ernest and other people of the valley, they left their work. वो सब अपने काम को छोड़ते हैं और proceeded to the spot and came to the place. Came to the place वेयर आ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है। जब कोई आता है, लीडर आता है, फेमस पर्सनैलिटी आता है, तो हम ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं ना, उसको बैंक्वेट, दैट वाज अरेंज्ड। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। अब कमांडर आ रहा है, बहुत सारे सोल्जर्स उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं, फ्लैग्स को वेव किया जाता है, and the crowds also started to roar. Ernest was standing too far back, but Ernest was seeing from the distance the face of commander. However, he could hear several voices. Ernest could hear several voices. It is the same face exactly, cried one man, dancing for joy. Now the one person cried that it has the same face. He has the same face that has the great stone face. Wonderfully like it, that is a fact, replied another. And another person in the valley also replied, yes, you are right. This commander has the same face as the great stone face. And why not? Cried a third. He is the greatest man of this or any other age beyond a doubt. कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे ग्रेट मैन है अपनी एज का और दूसरों की, of this and any other age. Ernest at last could see the general face, and now Ernest also saw general's face, and in the same glance to the outside. अब वही एक नज़र क्या देखता है अर्नेस्ट? एक नज़र से तो उस कमांडर को देखता है, दूसरी नज़र से ग्रेट स्टोन फेस को देखता है। ठीक है, देखो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि दोनों कैसे दिख रहे हैं। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. But जो अर्नेस्ट है उसको अभी भी विश्वास नहीं है कि इस कमांडर की रिजेम्बलेंस, फेस की रिजेम्बलेंस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करती है। अर्नेस्ट वॉज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट। Fear not. One, Ernest was seeing the great stone face, then the great stone face another time replied that, don't fear, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. ऐसा लग रहा था कि जो great stone face है वो धीरे धीरे, whispering होता है say something slowly to him, fear not, Ernest, he will come. जो ग्रेट स्टोन फेस है ऐसा लग रहा है धीरे से अर्नेस्ट के कानों में कह रहा है कि डोंट फियर अर्नेस्ट, द पर्सन हैविंग द रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस विल कम इन द वैली इन द फ्यूचर, डोंट फियर, and this commander has no resemblance with the great stone face. Okay students, that's all for today. Now you have to read last half lesson 9 after listening the video thoroughly from the text.